सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूँगा। सर प्लीज़ बैठे रहिए। सर आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूँ, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। यहाँ पर आप दक्षिण से हैं, और साई को मैंने देखा शुरू के इंटरेक्शंस में कि वो जब भी हिंदी बोलती हैं तो पहले कहती हैं कि सर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन भाषाएं जो हैं वो बहनें होती हैं। तो आज आप हिंदी का जो गढ़ है दिल्ली में, उसमें दक्षिण से आई हैं। हाँ जी। तो और भाषाएं बहनें होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप मौसी के घर आई हैं। ये सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हैं। तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूँ कि इस पूरे दौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब ये इतना बड़ा करैक्टर, मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा करैक्टर किसी भी अभिनेता के लिए, किसी अभिनेत्री के लिए मिलता है, हाँ जी। तो क्या आपको अनुभव था, वो शेयर करें हमारे लोगों के साथ। पहले थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग इट सिंक इन दैट मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए। इट्स नॉट ईजी फॉर एक्टर्स टू गेट रोल्स लाइक दिस, बिकॉज एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक ईजी काम नहीं होता है। एक टीम होनी चाहिए who is putting their heart and soul into making it the best version of what they can present to the world, because it becomes itihas, it becomes history for the rest of the world to think go back to in the future. So ऐसे एक project में मुझे चुनने के लिए thank you so much. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role, because it's not something that you can go after, and it is not something that you can write down on a piece of paper and say, this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say, Sita Ma, you act through me. Whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And उस कोशिश में मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया। ठीक लगा। Going good. Thank you. I think from what we saw right now, and today is a very important day for all of us, because I've worked on the film for maybe 3 years, but they've all been on the project for more than almost 10 years now. So इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। So I'm as excited and as humbled, and I think it's a very important day for all of us. Thank you so much for sharing this day with us. And finally, I want to say, I want Nitesh sir to tell us a little bit about Ram and Sita as he saw them, because he has directed you all on set. And I know that he was very clear when we used to have our discussions about casting. I think in his mind, to have you play Sita and to have him play Ram, as him being Ranbir, play Ram, was his first choice. And I only say one thing, that, you know, and I think he and I share this sentiment, that we have actually got people that we have felt would be the best, and people who have for some reason not connected with us on this film have brought other people into the film that have equally done a terrific job. But sir, I want you to tell everybody how you imagined them and why you were always enthusiastic about her playing Sita and Ranbir playing Ram. मेरा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये मेरी, कि एक कलाकार की आंखें सच बोल देती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगा कि रणबीर की आंखों में मुझे श्री राम दिखाई दिए, और साई की आंखों में मुझे सीता माता दिखाई दी, यू नो। और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बीइंग एक्सट्रीमली गिफ्टेड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू नो,
I just felt that the kind of sincerity I was looking for, the kind of preparation I wanted the characters to go through to play such important roles, I could have found only in these two beautiful souls. And I am so happy. I can't tell you, when you guys come and watch the film, मुझे साई नहीं दिखाई देती, मुझे सीता माता दिखाई देती है, मुझे रणबीर नहीं दिखाई देते, मुझे श्री राम दिखाई देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है और वही उन लोगों ने पूरी कोशिश की है पर्दे पर उतारने की. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी जब थोड़े से अंधेरे में चलते हैं तो उनकी परछाई काली होती है. किसी भी पद पर पहुंच जाइए, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे, सूरज की रोशनी में चलेंगे या स्ट्रीट लाइट में चलेंगे तो आपकी परछाई काली होगी. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल एक ही मेरे रघुबीर, मेरे राम चले हैं जिनकी परछाई गोरे रंग की थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी परछाई के रूप में उनके गोरे रंग के भाई लक्ष्मण साथ साथ चलते थे. राम सीता इस मंच पर हों तो आवश्यक है कि हम यहाँ लक्ष्मण को भी आमंत्रित करें. मैं रवि को आमंत्रित करता हूं. जोरदार तालियों के साथ रवि का स्वागत कीजिए. बहुत सुंदर काम उन्होंने कि लेक्चर देखता था और आप बोलते थे कि यार टेंशन मत लें, बिलीव इन राम जी, सब हो जाएगा. बहुत अच्छा सवाल बार बार पूछे. तो मुझे आज भी याद है, इतना इनोसेंट तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, सर एक छोटी सी बात पूछूं. मैंने कहा पूछो. सर राम भगवान है या मनुष्य हैं? और उसको समझाने के लिए जो हमारा लगभग 1 घंटे का वो हुआ, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या समझे, राम भगवान है या मनुष्य हैं? तो उसने कहा सर अब मैं समझ गया हूँ, राम सब कुछ हैं, पूरी पृथ्वी वो है. ये समझाइश बहुत जल्दी रवि से हम पूछेंगे. वही एक सवाल आपसे, इस पूरी जर्नी में आप बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इस जर्नी में जहां आप अपने फिल्म के भैया और भाभी के साथ खड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, साई ने कहा कि नहीं भाभी नहीं बोलता, माँ बुलाता है मेरे को. पर वो मैं भी कहूँगा कि जब रवि के साथ ये आप आंसर देना, पर ये रवि जो है, मैंने इतने एक्टर्स के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूँ, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है और वैसे ही बात करते हैं. मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच genuine faith and belief as Ravi has done. So Ravi, I must congratulate you for doing that, but please answer Kumar ji's question. सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो आवाज़ अगर टूट जाए थोड़ी या इमोशनल हो जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस. मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये. और आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं, और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं. श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणबीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए. न जानिए कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ. ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए, और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं, नमित सर, नितेश सर, मैं हाथ जोड़ करके जिंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा. आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड ऑलवेज इंडेटेड. थैंक यू. You deserve it, Ravi. एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आप लोगों ने तो सेट पर काम किया, हमने संगीत पर काम किया, सर दोनों, नितेश सर और नमित जी. तो मैंने वो नमित भाई का पैशन, वो गुस्सा, वो नाराज़ हो जाना, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, कई बार झेला है, देखा है.
इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इन दोनों के साथ? राम सीता के साथ जी। जहाँ तक हमारे राम जी का सवाल है, उन्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। वो मतलब थोड़े हमारे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तब इनका जन्म हुआ था, तो मैं तो इन्हें एक बच्चे की उम्र से देख रहा हूँ। पर वो हमेशा फेवरेट रहे हैं। उनका वो एक नेचुरल, राम जी की कृपा है उन पे कि वो एक नेचुरली उनके पास एक गिफ्ट है कि वो जिनसे मिलते हैं उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो उनका एक नेचुरल गिफ्ट है, तो मैं उसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता। तो वो हैं ही, और जिस सफलता से अपने आप को कोई भी भाग में डालते हैं वो उसमें हमेशा ऊपर ही आते हैं। वो उनका वो एक, वो तो मैंने देखा है कई सालों से, और इस बार काम करके भी देख लिया कि इनका टैलेंट कुछ अलग ही है। जहाँ तक साई का सवाल है, जब साई को तो मैं मिला नहीं था, पर जब ये नितेश जी ने जब इनसे बात की, इन्होंने माँ सीता के लिए जो ऑडिशन भी किया, उसके बाद एक क्षण भी नहीं लगा सोचने के लिए, क्योंकि इनके अंदर, इनके बोलने के ढंग में, इनके सोचने में, इनकी आंखों में, इनके हर किरदार में, उनके हर एक एक्सप्रेशन में वो एक प्योरिटी और जेन्युइनिटी जो है, इतना मैंने कोई और एक्टर में देखा नहीं है। और इनका जो प्रदर्शन है स्क्रीन पे, वो तो मतलब सलाम देने वाले, इट इज़ लाइक यू हैव टू सल्यूट एंड से वाओ, एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन शी इज़ आउटस्टैंडिंग, शी इज़ वेरी काइंड, थैंक यू, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू नमन। अब आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मंच पर कुछ उन लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी कृपापूर्वक, जो किसी फिल्मी समारोह में आपको नहीं देखेंगे, किसी फिल्म के लॉन्च में आप उनको नहीं पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि जिस नाम का वो भी गुणगान करते हैं